السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے کہانی پیش کر رہے ہیں مظہر الاسلام صاحب کا بہت ہی مشہور کہانی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے شکار کیا ہوا جانور۔ اس شخص کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ بھی ایک ایسے ہی شخص کی کہانی ہے جو زندگی کے بازار کی گما گمی میں مارا پھر رہا تھا، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اس سے میری ملاقات ہوئی تو ٹرین میں سفر کر رہا تھا، رات کا وقت تھا اور اتفاق سے اس ڈبے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر پہلے اس ڈبے میں ایک نوجوان بھی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مگر وہ پچھلے اسٹیشن پر اتر گیا اور اب ڈبے میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ وہ سیٹ پر نیم دراز تھا اور چھت کو گور رہا تھا۔ ایک سگریٹ ختم ہوتا تو دوسرا سلگا لیتا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، شاید اسے یہ احساس نہیں تھا کہ ڈبے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھ پر اثر کر رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جیسے یہ شخص وہ سوال ہے جو ماسٹر صاحب نے 5ویں جماعت میں مجھے حل کرنے کے لیے دیا تھا، مگر میں اسے حل نہیں کر سکا تھا۔ تو ماسٹر جی نے میرے دونوں ہاتھوں پر 5 بید مارے تھے۔ میری ہتھیلیاں انگارہ ہو گئی تھیں اور درد میرے سارے بدن میں زہر کی طرح پھیل گیا تھا۔ اب 30 سال بعد وہ حل نہ کیے جانے والے سوال کی طرح میرے سامنے پڑا تھا اور میری ہتھیلیاں درد کے مارے کانپ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ مر چکا ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ مردے سگریٹ نہیں پیا کرتے۔ میں نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا اور بات شروع کرنے کے لیے کہا، گاڑی لیٹ ہو گئی ہے؟ اس نے ذرا سا چہرہ میری طرف مڑ کر دھوئیں کی ہوٹ سے مجھے دیکھا اور بولا، گاڑی بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ چلو کچھ بولا تو صحیح۔ میں نے بات بڑھانے کے لیے کہا، آپ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے، میرا تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں۔ اس نے سگریٹ کا ایک مختصر سا کش لیا اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو انہیں ڈومینیٹ کرتا ہوں، ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اس لیے میں اب زیادہ نہیں بولتا کیونکہ وہ میرے خلاف خواہ محاذ بنا لیتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اپنا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، بندوقیں تان لیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے تم نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ کسی گاؤں کے لوگوں میں یکدم یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ قریبی جنگل میں شیر آ گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ شیر کو مارنے کے لیے اپنی بندوقیں نکال لیتے ہیں اور شیر کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف اتنی ساری بندوقیں نکل آئی ہیں۔ بھلے تم سمجھو میں شیر کی حمایت میں بول رہا ہوں، لیکن ذرا تم خود ہی سوچو، ایک طرف پورا گاؤں، دوسری طرف اکیلا شیر۔ مجھے یقین ہے کہ شیر کمینہ نہیں ہوتا، حملہ آور ہو سکتا ہے، مگر آپ اس کے جنگل میں جاتے کیوں ہیں؟ اس نے سردآ بھری اور ایک لمحہ چپ رہنے کے بعد بولا، میں تو ایک کمزور سا جانور ہوں، مجھے لوگ شکار کرنے کے لیے بندوق سے فائر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو گلیل سے ہی مارا جا سکتا ہے، پھر پتہ نہیں کیوں لوگ دل ہی دل میں مجھے اذیت پہنچانے کے لیے منصوبے بنانے لگتے ہیں، مجھے اس جرم کی سزا دینا شروع کر دیتے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، جب آپ بول نہیں رہی تھے تو مجھ پر حاوی ہو رہے تھے، ڈومینیٹ کر رہے تھے، یہی میری بدقسمتی ہے۔ میں جس سے بھی ملتا ہوں وہ یہی شکایت کرتا ہے کہ میں اس پر حاوی ہو رہا ہوں، وہ خواہ مخواہ میرے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتا ہے، میں مقابلے میں شریک ہی نہیں ہوتا، مگر دوسرا اپنے آپ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، نفرت سے میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نفرت میں گرا ہوا آدمی ہوں، کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، دراصل کوئی عام آدمی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو ہر شخص دبانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر مجھے دیکھتے ہی مرغ کی طرح گردن کے بال کھڑے کر کے مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتا،
मैं आपसे मिलकर खुश हुआ हूँ, आप सच्चे इंसान हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, अभी थोड़ी ही देर बाद तुम भी मेरे खिलाफ हो जाओगे, अभी बदल जाओगे। मैं शुरू से आखिर तक एक जैसा ही रहता हूँ। लोग शुरू में सच्चा यूं को पसंद करते हैं, मुझे शिकार करने के लिए मेरी झूठी तारीफ भी करते हैं, मगर जब इन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुझे घेर लिया है तो यकदम उनकी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। उन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, उनका मूड यकदम बदल जाता है। वो मेरी बेइज्जती करके अपनी अना को तस्कीन पहुँचाते हैं और मुझे घटिया कहकर पकड़ से बुलंद हो जाते हैं, गालियों से मेरी जेबें भर देते हैं। इसलिए दोस्ती और मोहब्बत पर अब मेरा ईमान उठ गया है। ये सब इंसान के खून की बात है, बेस बदलने से खून नहीं बदलता। इसलिए ना तो मैं किसी में पल में जाता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ। मगर आज फिर तुमने मुझे बातों में लगा लिया है। इतने में गाड़ी रुकी। मैंने कहा, आपका स्टेशन तो नहीं आ गया? उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ये मेरा स्टेशन नहीं। फिर वो उठ कर बैठ गया और सीट पर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने पूछा। यहाँ मैंने अखबार रखा था, चलो वो भी गुम हो गया। मेरे साथ यही होता है। क्या? मैंने तजस्सुस से पूछा। मेरी चीज़ें गुम हो जाती हैं, देखना अखबार नहीं मिलेगा। मेरी जब भी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो फिर नहीं मिलती। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब मैं 10 साल का था कि अगस्त के महीने में मेरी माँ गुम हो गई, आज तक नहीं मिली। क्या आपका वालिदा का इंतकाल हो गया था? नहीं, वो वाकई गुम हो गई थी। कैसे गुम हुई ये तो मेरा बाप ही बता सकता था, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि एक के बाद एक चीज़ गुम होती चली गई। मेरा बचपन गुम हो गया, मेरी जवानी गुम हो गई। अब तो मुझे अपना आप भी झूठ लगता है। इतने में गाड़ी रुक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पूछा, क्या आपका स्टेशन आ गया है? नहीं, ये मेरा स्टेशन नहीं है, उसने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा। हम दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, मगर मैंने महसूस किया कि वो वाकई मुझ पर हावी हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बड़ी बेचैनी से सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके असर से निकलने के लिए कहा, आप बिल्कुल डोमिनेट नहीं करते, तुम झूठ झूठ बोल रहे हो। उसने मेरी तरफ देखे बगैर जवाब दिया तो मैं लाजवाब सा हो गया। उसने अपनी बात जारी रखी, झूठ की अपनी एक बू होती है, ऐसी बासी चीज़ें खाने वालों के जिस्म से आती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बासी और ताज़ा चीज़ का फ़र्क ही मालूम नहीं। वो गंदी, बासी और मठरी सड़ी हुई चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन खूबसूरत और उजला लिबास पहनते हैं। लेकिन लोग जिस्म के लिबास का ख्याल रखते हैं, मगर रूह के मेरे लिबास पर उनकी नज़र नहीं पड़ती। बाज़ लोग बड़ी सच्चाई से झूठ बोलते हैं। उनका ख्याल होता है कि किसी को भी पता नहीं चल रहा है, हालांकि झूठ का साफ पता चल जाता है। मेरे कई जानने वाले हैं, इनमें एक तुम्हारी तरह बड़ी सच्चाई से झूठ बोलता है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि जो बात मैं कहूँ वही सच्ची है। अगर मैं कोई सवाल करूँ तो चिढ़ जाता है और कहता है, सुनो। जो शख्स मुझे चिढ़ाने की कोशिश करता है, मुझे उससे नफरत हो जाती है। हालांकि वो एक दुनियादार आदमी है, उसने कभी किसी से ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। वो कभी कभी मान जाता है फलां शख्स बुरा है, मगर वो उसकी मेपल से किनारा कशी इख्तियार नहीं करता। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बुरे और अच्छे लोगों से बेवक्त बेहतर ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। इसलिए मेरा वो दोस्त अक्सर बड़ी पराग दिली से मुझे माफ़ कर देता है और कहता है कि क्या करूं, तुम मेरी कमज़ोरी हो। जब वो ऐसा कहता है तो मुझे लगता है जैसे मैं पान हूँ जो किसी की कमज़ोरी बन जाता है और दिन में कई कई बार पान चबा कर थूकता है। देखो ना, अब भी मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कमज़ोरी बन गया हूँ, इसलिए कि तुम्हें तन्हाई अच्छी नहीं लगती। तुम किसी से बातें करना चाहते हो ताकि तुम्हारा सफ़र अच्छा कट जाए। अगर मेरी जगह यहाँ कोई और होता तो तुम उससे भी इस वक्त अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते, क्योंकि तुम हर लम्हा ज़िंदगी से लज्जत कशीद करने के लिए आई हो। तुम रोग नहीं पाल सकते। जो शख्स दुख नहीं सहता वो सच्चा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे झूठा कह रहे हैं? मेरी आवाज़ में गुस्सा था। नहीं, मैं तो अपने आप को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अंदर है खराबी मेरी अंदर है, इसीलिए तो मेरी चीज़ें गुम हो जाती हैं। ये माँ के गुम हो जाने थोड़े दिनों बाद की बात है कि मेरी तारीख की किताब गुम हो गई। अभी कुछ अर्सा पहला मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। मेरी डिग्रियाँ भी कब की गुम हो चुकी हैं। मैंने अपनी कब्र के लिए जगह तलाश की थी, वो भी गुम हो गई। इसमें भी कसूर मेरा ही अपना है। दूसरे लोगों की चीज़ें क्यों नहीं गुम होती?
अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे दिल में इसके लिए हल्की हल्की नफरत उभर आई है, मगर ये सोच के डब्बे में इसके अलावा कोई और नहीं। उससे अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे दिल में उसके लिए हल्की हल्की नफरत उभर आई है, मगर ये सोच के डब्बे में इसके अलावा कोई और नहीं, उससे बातों में अच्छा सफ़र कट जाएगा। मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा, हो सकता है लोग अपनी किसी चीज़ से मोहब्बत ही ना करते हों, इन्हें परवाह ही ना हो, उनकी कोई कमिटमेंट ही ना हो। इतने में गाड़ी रुकी, वो एकदम चौंक कर उठा, खिड़की में से बाहर झांका और फिर इत्मीनान से बैठ गया। आपका स्टेशन? मैंने पूछा। नहीं, ये भी मेरा स्टेशन नहीं है। मैं मुस्कुरा बगैर न रह सका। आप बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा सच भी अच्छा नहीं होता। मैंने आपसे उस वक्त मुलाकात में बहुत कुछ सीखा है। उसने ऊपर तले सिगरेट के 2-3 कश लिए और बोला, लोग इस कदर बनते क्यों हैं? कहीं ये आप मुझे तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। तुम्हें बनने की क्या ज़रूरत है? तुम कौन सा किसी चीज़ को सीरियस लेते हो? तुम्हें कभी किसी बात का अफसोस ही नहीं हुआ होगा। तुम बहुत मोहतात आदमी हो। तुम दोस्तों के दुश्मनों को भी दोस्त हो। तुम्हारी कोई कमिटमेंट नहीं। तुम हमेशा स्टैंड बाई अरेंजमेंट रखते हो। तुम तो किसी के खिलाफ बात भी नहीं करते। और देखो, मैं उस वक्त से लोगों के खिलाफ बातें कर रहा हूँ। मुझे हंसी आ गई और उस पर तरस भी आया। मेरा जी चाहा कि उसे कोई कड़क सा लतीफ़ा सुनाऊं ताकि वो भी हंस पड़े, मगर लतीफ़ा सुनकर भी वो कोकली सी बदमज़ा हंसी की ओट में बैठा सिगरेट पीता रहा। ये कैसा फजूल आदमी है। वो वाकई मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे अपनी शख्सियत टूटती हुई महसूस हुई। एकदम मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने आंखों में नफरत भर कर उसकी तरफ देखा और कहा, माफ़ कीजिए, आप बहुत घटिया आदमी हैं। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैं वाकई घटिया हूँ। इस बात का एहसास मुझे कुछ दिन पहले उस वक्त हुआ जब एक मशीन में तारिक मेरे पास आया, जिसने अपनी प्रिंटिंग मशीन के साथ वाली दीवार पर मेरी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी मोहब्बत से उसने मुझे बताया कि वो तस्वीर भी गुम हो गई है। क्यों भला? कैसे भला? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो बोलता रहा, मेरा क्या कुछ गुम नहीं हुआ? मेरी किताबें, मेरी खुशी, मेरा घर, मेरी सच्चाई। इतने में गाड़ी रुकी और जल्दी से उठा और बोला, मेरा स्टेशन आ गया है। उसके चेहरे पर फैली हुई उदासी किसी अनजानी सी खुशी की लहर से धुल गई। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और मेरे साथ साथ ही गाड़ी से नीचे उतर आया, मगर चंद कदम दूर जाने के बाद अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और बुराई हुई आवाज़ में बोला, मेरा ये स्टेशन पर मेरा तावीज़ गुम हो गया है। उसकी उंगलियां कमीज़ के नीचे सीने पर कुछ टटोलने की कोशिश कर रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो बोला, मेरे पास तो बस वही तावीज़ रह गया था। मेरी ज़िंदगी तो इस तावीज़ से बंधी हुई थी। मैं चुप रहा और गुस्सा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। यकदम वो आगे बढ़ा और मुझे इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरे आवाज़ गुम हो गए। मैंने धुंध में इसे लटखड़ा कर गिरते हुए देखा और दूर से उसकी आवाज़ सुनी, तुम्हें मेरे तावीज़ के गुम हो जाने का ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ? जब मेरे होश ठिकाने आए तो लोगों की भीड़ में वो प्लेटफार्म पर मरा पड़ा था। मैंने आखिरी बार उसके चेहरे पर एक नज़र डाली और भीड़ से निकलकर सीढ़ियों वाला पुल अबूर करके स्टेशन से बाहर आ गया।